तो जस्ट अ क्विक रिकैप, कल हमने जूस निकाला था, स्किन को अलग रखे थे और पल्प यहाँ पे रखा था, कैमडेन डाला था। नाउ ऑलमोस्ट ओवरनाइट हो चुका है, 12 आवर्स से ज्यादा हो चुके हैं। तो कैमडेन का सल्फर डाइऑक्साइड हैज गॉन आउट। अभी हम लोग रिफ्रैक्टोमीटर रीडिंग लेंगे। इसके लिए मैंने 2-3 ड्रॉप ऑफ वो चाहिए था। ये देखिएगा, यहाँ पे मैंने 2 ड्रॉप डाल दिए और दिस इज 20 ब्रिक्स, 20 ब्रिक्स। 20 ब्रिक्स का मतलब इसमें आराम से 10-11% वो बन जाएगी। मैं इसमें अभी तक मैंने कोई पानी नहीं डाला है। अगर आप पानी डालते हैं तो आपको अगेन 20% ऑफ दैट वाटर आपको और इसके अंदर वो डालना पड़ेगा। तो अगर आपने 1 लीटर पानी डाला है तो आपको 200 ग्राम्स इसमें शुगर और डालना पड़ेगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज प्रीटी गुड। नाउ इट्स टाइम टू ऐड ईस्ट न्यूट्रिएंट एंड ईस्ट। तो मैंने ईस्ट, ये रेड वाइन ईस्ट है जो आपको अरिस्टम की वेबसाइट पे मिल जाएगा, और ये मैं इसको स्प्रिंकल करके डाल रहा हूँ। इसको आप हाइड्रेट करके डालेंगे तो बेटर रहता है। अभी जस्ट बिकॉज ये क्लास है तो इसलिए मैं इसको ऐसे ही स्प्रिंकल कर देता हूँ, ठीक है। एंड इसको अभी हम लोग टुमारो देखते हैं। टुमारो इसको कान अगर आप लगाएंगे तो आपको साइड में बबलिंग साउंड आएगी, और अगर आप देखेंगे तो इसका लेवल भी थोड़ा सा ऊपर हो चुका होगा। अभी आप लेवल देख लीजिए कितना है लेवल। अभी का लेवल इतना है और कल आप देखेंगे कि लेवल इतना हो जाएगा। इसको डेली अभी स्टर करेंगे हम लोग, जिससे पल्प पे फंगस वगैरह ना जमे, और 3 डेज के बाद हम इसको सेकेंडरी में ट्रांसफर कर देंगे। दिस इज द 4th डे इन द वाइन मेकिंग सेशन। ऑन day 2 we added the yeast and we allowed it to ferment. After that, every day we have been stirring it so that the upper layer gets recycled and hence the mold does not get formed. Today is day 4. Here I am anticipating that about 70% of the alcohol. So when we started, we started with 20 bricks, which means 20% sugar per liter of juice. Now I am anticipating that about 70% of that would have gone down. The bricks would be lower to about 6. And now we are going to transfer it to the secondary fermentation, wherein we are going to allow it so that the wine gets cleared. Till now it was called must, which is a Latin word which means that early wine. Now it will be called wine. For this I would need, I've taken a pickle jar, and on the pickle jar I have attached the airlock to make it a fermenter. Okay, I'm not using any sugar in this recipe because the juice that I started with already had 20 bricks, so it's good enough for me. If you want some, you can add some sugar syrup as well. If you don't have the fermenter, you can also use these swing top glass bottles. These swing top glass bottles are available in most restaurants. It's used to serve water. It can also hold pressure. Now the first thing I'm going to do is I'm going to check for the, okay, this bag is there, the smell is coming out good. So we have to press this so that all the juice comes out. All the color, the red color that we talk about, that is there in the skins. So we want all the juice to be extracted. This juice would be more red in color than the rest of the wine. I'm going to keep it here. Later on I'm going to hang it. Okay? So that's why this bag comes with the string. So I'm going to hang this easily. Nothing, I have to just tie the string. Okay? Keep a plate below so that all the juice, and with the juice, as you can see, a very deep red color is also coming in. I want this red color. If you are making a larger batch, then you use the wine press. In the wine press, what we do is we keep this bag between 2 weights and we gently squeeze it with a screw. And with the screw, we extract all the juice out. Since it's a very, very small batch, I'm going to do it manually. Don't worry, this bag is very, very sturdy. Nothing will happen to the bag. But still, be careful if you have long nails and extract as much juice as possible. If you want to add some oak chips, this would be the best time to add the oak as well. Oak will make your wine a little bit more dry. And this would be the best time to add water and sugar to your wine. And after adding all this into a fermenter, we are just going to put an airlock and we are going to be done with it. I'm going to put this back and extract some more. The sediments are also there, but don't worry about the sediments. As over the next 10 days,
the wine will clear up, and as it clears up, the sediments will go out. If you have your own grape garden, then you can add this as a compost. When you add this, there's a lot of yeast inside this. This will help you establish your biome, which means that the yeast will naturally cover all your vegetation, all your plants, everything, and later on you don't have to add Camden. You can use the natural yeast for fermentation. Okay, the wine is not going to be clear here, but don't worry about that. Okay. Another benefit of keeping everything in the bag is now I don't have to worry about removing pulp, filtering, and all those things. Ideally, we are supposed to use a siphon for this. I'm going to keep the fermenter on the floor, so this will give a good gravity. Okay, I keep it here. Okay. I'm also going to take a 250 ml sample. Okay. Okay, almost all the sugar has been converted here. So because of the summers, you're a little bit late. So all the sugar has been converted. Now we'll add some more sugar, some more sugar and water, so that the wine gets a rich color. Look at the deep red color. Okay. Now we'll attach an airlock to it. You can add up to 50 grams per liter of sugar into this. So you can also dilute it down if you don't want it to be that deeper color. I like a more traditional way, so in which I want the color to be a lot deeper. Okay, I'm going to put in some water in the airlock. That's the reason I had taken some water. Okay, and then you give it about at least 10 days. The wine will start clearing up. If you want to check whether the wine is clear enough, your mobile phone will have a torch. I'll just show that to you. See, mobile phone has a good torch feature which you can use as a turbidity meter. Okay, you can keep it here right now. You can see, you can't see any light. As the days will pass in, after 10 days or even after a month, when you will see it, you'll see that the light will be passing through. That means that your wine has cleared up a lot. Today is the 14th day of wine making process. अब आप दो तीन चीजें कर सकते हैं. या तो आप इसको एक और वेसल में करें, तो सेकेंडरी से टर्शरी में आप कन्वर्ट कर दीजिए और उधर आप थोड़ी देर और वेट करिए जिससे ये और क्लियर हो जाए. वरना अगर आपको लग रहा है कि ये क्लियर इनफ हो चुकी है तो फिर आप इसको बॉटल कर दीजिएगा. नाउ ये हम लोग आज हम लोग जो बात कर रहे हैं वो ड्राई रेड वाइन की बात कर रहे हैं. ड्राई रेड वाइन का मतलब क्या हो गया कि इसमें अल्कोहल है लेकिन इसमें स्वीटनेस नहीं है, और इसके स्वीटनेस नहीं होने के कारण से थोड़ी सी आपको खट्टी भी लगेगी, थोड़ी सी आपको बिटर भी लगेगी. बिटरनेस आपकी, अगर आप इसको एक महीना वेट करेंगे तो बिटरनेस इसकी मेलो डाउन हो जाएगी. खटास कम करने के लिए आपको थोड़ा सा कैल्शियम कार्बोनेट डालेंगे. कैसे आप डालेंगे वो आप वेबसाइट पे आप देख सकते हैं. ना अभी हम लोग बात करते हैं बॉटल की. तो आप, क्योंकि इसमें प्रेशर नहीं है, तो आप कोई भी एयर टाइट बॉटल ले सकते हैं. जैसे पानी की बॉटल है, आप इसको ये भी ले सकते हैं. आपको ये वाली बॉटल बहुत इजीली मिलती है. इसका थोड़ा सा ग्लास थोड़ा सा मोटा होता है. ये मेरी फेवरेट बॉटल है, इसको भी यूज कर सकते हैं. इसके साथ ये फायदा है कि आप इसमें फ्लैट वाइन एज वेल एज स्पार्कलिंग वाइन दोनों चीजें बना सकते हैं. और इसमें अगर प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो इसमें ऑटोमेटिकली थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है और प्रेशर आपका रिलीज हो जाता है. तो ये दिस इज वन ऑफ द सेफेस्ट बॉटल. नाउ कमिंग बैक टू, अगर आपके पास प्रॉपर वाइन बॉटल है तो बेस्ट है. अगर आपके पास वाइन बॉटल है तो पैकेजिंग आप ये नॉर्मल पैकेजिंग मत करिएगा, आपको बढ़िया से पैकेजिंग करनी है. उसके लिए हम लोग दो चीजें रखते हैं. ये एक तो वाइन कॉर्क रखते हैं. इसमें आप ये देख सकते हैं कि नीचे का ये थोड़ा सा टेपरिंग है और ऊपर से स्ट्रेट है. इससे फायदा ये होता है कि नॉर्मल जो स्ट्रेट वाइन कॉर्क होती है उसको स्क्वीज करके फिर वो उसको इंसर्ट करते हैं. तो उसके लिए आपको एक मशीन चाहिए होती है. चाहे वो डबल लेवल कॉर्कर जो हैंडल कॉर्कर होता है वो लीजिएगा या फ्लोर कॉर्कर लीजिएगा, आपको ही लेना पड़ता है. अगर आपके पास ऐसी बोतल है तो आप इसके अंदर आप ये कॉर्क लगा सकते हैं. और ये कॉर्क लगाने के बाद इसको आप देख सकते हैं हाथ से भी ये अंदर जा रही है. और अगर आपको एक हैमर मिलेगा तो इसका मुंह पकड़िएगा हाथ से और फिर धीरे धीरे हैमर से करिएगा.
कायदे से आपको मैलेट यूज करना पड़ता है। मैलेट इज नथिंग बट अ रबड़ हैमर होता है, जो आपके आपने देखा होगा ऑर्थोपेडिक्स वगैरह में भी यूज होता है, तो वैसा मैलेट यूज करें तो बेस्ट रहता है। अगर वो नहीं है तो आप एक स्टील का हैमर ले सकते हैं, उसके ऊपर पुरानी टी शर्ट लगा के उससे भी आप बना सकते हैं। जब आपकी कॉक लग जाएगी उसके बाद ये श्रिंक रैपर आता है, ठीक है। ये श्रिंक रैपर आपको ऐसे ये अलग अलग सेपरेट हो जाता है। इसको आपने इसके ऊपर ऐसे रखेंगे और फिर इसको उल्टा करके आप इसको गर्म पानी में डाल देंगे। गर्म पानी में डाल देंगे तो फिर ये बिल्कुल श्रिंक होके यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि ये ओपन करने का टैप भी हो जाता है। इसमें बिल्कुल जैसे बाजार की बोतल खुलती है बिल्कुल वैसे आपकी बोतल खुल सकती है। बट ये तभी काम करेंगे जब आप प्रॉपर प्रोफेशनल वाइन बॉटल्स यूज करेंगे। अगर आप नॉर्मल अपने दोस्तों के सिर्फ सैम्पलिंग के लिए कर रहे हैं तो फिर आप एक नॉर्मल कांच की बोतल, पानी की बोतल आप वो भी यूज कर सकते हैं। A quick recap of what we have done till date, ठीक है। हमने पहले दिन हमने क्या किया था, हमने ढेर सारे ग्रेप्स लिए थे, उनका स्टेम निकाला था। स्टेम निकाल के हमने उसको वॉश किया था और वॉश करने के बाद हमने उसका जूस निकाला था। जूस निकालने के लिए हमने बात किया था कि आप बहुत सारी अलग अलग चीजें कर सकते हो। आप कुछ लोग पोटैटो मैशर यूज करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं कि अगर सीडलेस ग्रेप्स हैं तो ब्लेंडर में कर देते हैं, वरना कुछ लोग क्या होता है कि सेंट्रीफ्यूज वाला जूसर होता है उसमें डाल देते हैं। कुछ लोग ये जो मौसमी वाला जूसर होता है उसमें से कर लेते हैं। मैं क्या करता हूँ कि मैं एक कपड़े के बैग में ले लेता हूँ और फिर उसको पीट के उसका जूस निकाल लेता हूँ। जो भी आपको ठीक लगे वो कर लीजिए, जो भी आप अभी तक करते आ रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है। एज लॉन्ग एज आपने जूस निकाल लिए है, आपने सीड्स को तोड़ा नहीं है और आपकी स्किन भी आपने निकाल ली है, तो आपका काम अचीव हो गया है। उसके बाद हमने क्या किया था कि उसको एक बड़े से बर्तन में रखा था। जस्ट टू रिकॉल, हमने ऐसे इस टाइप का एक बर्तन यूज किया था, एक वाइड माउथ का बर्तन लिया था। क्यों? क्योंकि शुरू में फर्मेंटेशन बहुत विगरस होता है, तो उसके बाद वो ऊपर उठने की कोशिश करता है। तो अगर ये 3 लीटर का जार है तो हमें कम से कम 6 लीटर का वेसल चाहिए, जिससे वो अगर जो भी बाहर निकलता है उसके बाद भी वो ओवरफ्लो ना करे। ओवरफ्लो करता है, फूड खाने पीने का आइटम है, फिर वो मक्खी भिंगे सब आदमी लग जाएंगे, आपको दिक्कत हो जाएगी। ये हमने पहले दिन किया था, हमने जूस निकाला था। जूस निकालने के बाद हमने उसके अंदर पेक्टिन एंजाइम डाला था और पेक्टिन एंजाइम डालने के साथ साथ हमने उसके अंदर थोड़ा सा कैमलिन डाला था। पेक्टिन एंजाइम का काम ये होता है कि अंदर जो जेली टाइप का जो होता है ना व्हाइट कलर का, वो उसने उसको ब्रेक कर दिया था। और जो आपका जो उससे क्या होता है कि आपका जूस एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी, शुगर एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है। उसके बाद हमने उसके अंदर कैमलिन डाला था। कैमलिन क्या होता है कि स्किन, आपने ब्लैक कलर की ग्रेप की स्किन में देखा होगा कभी व्हाइट स्पॉट्स होते हैं, वो मोस्टली ईस्ट के होते हैं, वाइल्ड माइक्रोब्स होते हैं। तो कैमलिन डालने से वो खत्म हो जाते हैं। वो डाल के हमने 24 घंटे इसके अंदर रखा था, ढक के रखा था। उसके बाद अगले दिन हमने क्या किया था कि ईस्ट का एक स्टार्टर बनाया था, या ऐसे हमने किसी जार में थोड़ा सा ईस्ट डाला था, थोड़ा सा पानी डाला था और उसको वेट किया था कि ऊपर निकले। ईस्ट का स्टार्टर डाल के ईस्ट के स्टार्टर को इसके अंदर हमने पोर कर दिया था। और उसके बाद हम लोग ने रोज सुबह सुबह 3 दिन तक इसको हिलाया था। हिलाने से क्या होता है कि आपका जो ऊपर जो फ्लोट है, क्योंकि हमने स्किन इसमें वापस डाल दिया था, स्किन के अंदर बहुत सारा कलर होता है, तो इसलिए हमने स्किन इसमें वापस डाल दिया था। और हिलाने से क्या होता है कि जो स्किन है उसके ऊपर मोल्ड नहीं जम पाता है। क्यों? क्योंकि आपका वाइन जूस थोड़ा सा खट्टा होता है और तो खट्टे में कभी होता नहीं। जैसे हम अचार बनाते हैं तो अचार में भी हम ऊपर की सरफेस को हिलाते रहते हैं, वैसे हम इसकी सरफेस को हिलाते रहते हैं। 3 दिन के बाद हमने एक साइकिल से अपनी वाइन को हमने एक नैरो माउथ फर्मेंटर पे डाला था और उसके बाद हमने एयर लॉक लगाया था। अब ना उसके बाद हमने बात किया था कि आपको अगर शुगर डालना है तो शुगर डालने का ये बहुत काफी अच्छा तरीका है। इसमें हमने पानी नहीं डाला था, बट 20% ब्रिक्स से हमारा करीबन 11% बनता है। इंडियंस का टेस्ट में करीबन 13-13.5% अल्कोहल इज समथिंग दैट दे लाइक। तो 13.5% अल्कोहल डालने के लिए करीबन 50 ग्राम पर लीटर, तो अगर 3 लीटर का वेसल है तो हमने इसमें 150 ग्राम शुगर भी डाला था। 150 ग्राम शुगर डालने से ये फायदा हुआ कि इसके अंदर 5% एक्स्ट्रा ब्रिक्स आ गया। 5% एक्स्ट्रा ब्रिक्स का मतलब हो गया करीबन 2.5% के करीब हमारा शुगर बढ़ जाएगा। तो हमने 11% की जगह अभी हमें 13.5% हमारा शुगर बन जाए, इसमें अल्कोहल बन जाएगा। 13.5% अल्कोहल वुड बी समथिंग दैट मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक। नाउ इज द मोमेंट फॉर ट्रुथ। 4 weeks ago, about 28 days ago, we had taken some grapes, squished it, then we had added some yeast, fermented it. We waited for about 3 to 4 days, then we moved it from a primary fermenter to a secondary fermenter. Then in that secondary fermenter, we allowed it for a couple of weeks, and then about a week ago, I had bottled it. Now let's see how this wine is and how this 4
weeks old wine is. The lid is really tight because you don't want any air to come in. Actually, I'm supposed to pour half the glass, but I'm pouring full glass so that I can show you some more taste as well. Okay. So test number 1. Let's see how it behaves in front of light. You can see it is really clear. A nice glow is coming. The color is also very deep red. It's a very good color. See, you can see a very beautiful, nice glow, red glow below it. Now let us see how it tastes. Cheers. This is a dry wine. Now for the dry wine, it's very easy to make a sweet wine because in the sweetness, all the other off flavors, everything it masks away. But this is a dry wine, and dry wine is really difficult because once you take out the sweetness away, every fault gets exposed. So very few home wine makers and home brewers go for a dry wine. This is the reason for that. But I always make the first wine to be dry, and then this gives me an idea of what all, how I can enhance it. So no spices are added here, but a little bit of pepper would have been very good in this one. Some people like cinnamon. I'll prefer cloves to cinnamon, but it's up to you. Bay leaf is another something which a lot of people like. So these are the couple of spices that you should definitely try with. Let me take another sip. The color is amazing. The taste is also very good. It has a lot of dryness to it. It just grabs the throat, which means it has very high amounts of tannins in it. Typically, if you find that the tannins are a little bit less, then you can add some oak chips to it. It will give you the barrel oak, the woody flavors, which will enhance the dryness of your wine. But this one, since we have not added any sugar or we have not added any of the water into it, this is a pure and natural wine, as natural as it can be. So cheers. I hope you enjoy it. Thank you.